Hello everyone, welcome to Neck Bracket, and today we are going to discuss about the most demanded lesson and based on the transformation type, and this is also an important lesson for you all because many times in the examination these from this topic the question will be asked. So let's start it today lessons. And in a previous lesson we have talked about the transformation and its type, and now the we will discuss in a detail the types of the transformation. So basically, as you know in the slide, the translation. What is a translation? We have to translate an object into some another position. Okay, the object will be same, but its position will be changed according to a point, and the points along with the movement, and this movement is called as the translation. And if this movement is in the form of the line, so straight line here, you have see that in this figure the point P, which is in the blue color, so it is in point before translation, and after the translation it the point P, which is in red color, it displays some distance from blue color to red color. Okay, so this straight line movement of an object from one position to another position is called as the translation. Hope you all of you are understand basic definition of the translation very well. Okay, so I have earlier said that one object can change its position by using the straight line and displays some distance. Okay, and this distance is in form of the vector because there is कोई ना कोई एक direction में ये move करेगा. Okay, so it has some displacement, and this displacement is measured by the translation vector. For x-axis it is called the tx, the translation vector for this x-axis, and it is called as the translation ty for the y-axis respectively. Okay, so as the definition shown in the given slide, a translation moves all the points in an object along the same straight line path to new position. It is called as the translation. And the next, the path is represented by a vector as I show you in the slide. And this point, the P, contains the homogeneous coordinate, that is 2, 2. This homogeneous coordinate will change its position according to the P dash, and the new points are 8, 6. So we have to convert the 2 cross 2 matrix into a 2 cross 2 matrix. Okay, the homogeneous coordinate will change its position, and there are several methods to doing this translation. Suppose we have to change the some points in a anti-clockwise manner. Okay, because we neglect all the negative terms. Why? Because it creates the complexity to getting the answers. Okay, so in a graphics, we in a images also we can, most of the uses we can use the positive values always, right? So keep in your mind, when we solve the numerical also, so we can take the positive value as well for this purpose. Okay, so here we use the point p dash. P dash is the new value of the x-axis regarding. Okay, is equal to px. Px is the value of the coordinates before translation, and it can use the displacement. So the tx, the translation vector, will be added to in the px, and for the same for the y, p dash y is equal to py plus ty. In a matrix form, we can represent into a 2 cross 2 matrix. So it becomes the tx and ty is belongs to a capital T of the transformation,
Translation: tx and ty, px and py will belongs to a p, and the px dash py dash, that is belongs to a matrix p dash. Now it is look like always written in this form. Okay, all of you have understand it. Okay, so go on the next slide. What is the rotation? As the slide, the example of the slide shows, the basic rotation. When we want to rotate an object along with a circular path, it is called as the rotation. Okay, so what is the idea behind that? Why we want to rotate the images? To clarify the images as well. Okay, so we want to repositions or different kinds of the images. Okay, so for the object, here we use the object because the lots of pixels can be represented into an image. Okay, so the image, basically the image can be repositioned itself by scaling its feature, by morphing its pictures. So we want to use the rotate it by the different types of the graphic representation and manipulation also. And when it object with a circular path, and it is called as the rotation. And what is the meaning of the pivot element? The rotation basically done with the two categories. First one is your about the origin, and second one is your about the pivot element. About the origin, here the diagram represent the rotation of the arc makes an theta angle, and the new position of the red color point denoted as the P. So after the rotation, the next point becomes the red, and before the rotation, the previous one is represented as a brown color, and it rotate this line with respect to its origin. But in a pivot case, for pivot elements, it does not belong from the origin itself. It may be anywhere in the particular region. Okay. So let's do the how to represent the rotation matrix as well. So now by using the diagram, you say first the first line, which is displayed from its origin, brown in color, P, the coordinates of the point P is x comma y. When it's displayed some distance from its previous position along with the this angle made an phi angle from the x-axis. So how it can be represented into a, by using the matrix form, because we use such type of formula that we can easily find out the this distance, which can be measured by this to its base, right? So first cos phi is equal to x upon r. What is the x? X is the base and this is the r. r क्या है? Side. ओके, तो ये हो जाता है आधार बटे कर्ण. ठीक है, cos phi इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ये. तो हमको क्या चाहिए? x पता है, r पता है, हमको phi निकालना है कि कितना एंगल बना रही है. अब इसका मेन क्राइटेरिया क्या है इसके पीछे, कि अगर हम एक बार phi निकाल लेंगे और जो नई वाली लाइन है, जो नए वाले पॉइंट से p डैश, जिनके इतनी वैल्यूज हैं x डैश y डैश, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे और इनको आपस में ऐड कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर जो लाइन थी उसने मूवमेंट होने के बाद कितना टोटल एंगल बनाया और इसकी वैल्यू क्या थी. ओके, तो क्लियर हो गया. तो अब हमने क्या किया, पहले थीटा फाई निकाल लिया क्योंकि बेस हमारे पास है. अब हमारे पास एक बार भी ये निकल आया, फिर हम उसके बाद साइन निकालेंगे. क्यों? क्योंकि एक बार एक्स एक्सेस के लिए निकालेंगे और एक बार वाई एक्सेस के लिए निकालेंगे. तो दैट्स वाई वी यूज द साइन फाई. साइन फाई क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण. तो लंब यहाँ पे क्या है आपका? y. y है, y एक्सेस के रिगार्डिंग उसी को ले लिया है
क्यों? क्योंकि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट क्या है? पी एक्स वाई, राइट। एंड आपका बेस यहाँ पे क्या हो जाए? कर्ण क्या है? आर, ठीक है। एंड एक्स, अब हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? आर कॉस फाई एंड वाई इज इक्वल टू आई आर साइन फाई। इसको एज इट इज अपना स्टोर कर लेते हैं अभी, फिर हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है एक्स डैश आपकी, देखिए ऐसे ही एक्स की वैल्यू आई थी आर डॉट कॉस फाई, तो एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी आर डॉट कॉस फाई प्लस थीटा, ओके, क्योंकि दोनों एंगल जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब हमने कॉस फाई प्लस थीटा को ओपन कर दिया, तो ओपन करने पे फॉर्मूला लगाते हैं cos a plus b। होप यू understand well because you have just revised all the trigonometry basic terms, okay। सो यहाँ पे x डैश हो गया, जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे प्लस साइन जो है वो बीच में माइनस हो जाता है, सेकेंड टर्म वाला जो है वो साइन फाई के लिए, एक बार cos के लिए एक बार साइन के लिए, तो r cos फाई इंटू कॉस थीटा माइनस r साइन फाई इंटू साइन थीटा, ओके। अब जब यहाँ पे माइनस साइन होगा तो बीच वाला प्लस हो जाएगा, तो r sin फाई थीटा के लिए अब हमने निकाल लिया y डैश इज इक्वल टू r cos फाई sin थीटा प्लस r sin फाई डॉट cos थीटा, ओके। एंड नाउ the v becomes the x dash and the y dash, so x dash is equal to r cos फाई की जगह, r की जगह हम यहाँ से ये वाली वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू रख देंगे x वाली जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास, ओके। पुट अप द वैल्यूज है देयर, तो आपके पास वैल्यू आ गई x डॉट कॉस थीटा माइनस y डॉट साइन थीटा। आपने r cos फाई की जगह आपने x रख दिया, ओके। इसी तरीके से y डैश की वैल्यू निकल के आ गई, सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे वाली लाइन में y डैश इज इक्वल टू x डॉट साइन फाई प्लस y डॉट कॉस थीटा, ओके। नाउ हमको इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? ये हो गया एक्स एक्स वाला आपस में साथ में लिख देंगे, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमने इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए आर इज इक्वल टू क्या आ गया? कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। अब ये वैल्यू आर आपके पास क्या है? रोटेट होके कोई नई वैल्यू आ गई, तो आर किसकी रोटेट हुए थे? जो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट आपने लिए थे एक्स वाई के टर्म्स में, तो पी आपका क्या है? एक्स वाई, पी डैश इज इक्वल टू आर इंटू पी भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये बात थी जब हमने क्या कि सारा कुछ जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया था, ठीक है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो यहाँ जहाँ माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है पहली रो में आप देखिए माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है पहली रो और सेकंड कॉलम में, वहाँ पे हम क्या कर देंगे? प्लस साइन थीटा कर देंगे, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो है वहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। जहाँ तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे इन केस ऑफ अगर हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। नाउ द स्केलिंग, सो मैंने बताया था स्केलिंग क्या होता है, एस फॉर स्केलिंग एंड एस फॉर साइज। जब भी हम साइज चेंज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो हम बोल देते हैं वो स्केलिंग हो रही है इन अ ग्राफिक्स वर्ड, ओके। सो नाउ वी हैव टू फॉर्म्स फॉर देयर। फर्स्ट वन हमको क्या यूज करने पड़ेंगे स्केल करने के लिए? फिर से वही काम है, हमको एक स्केल फैक्टर चाहिए होगा, जैसे जो काम वेक्टर वहाँ कर रहा था ट्रांसलेशन में, अब हम यहाँ पे स्केल फैक्टर्स लेंगे एक्स एंड एक्स के लिए और वाई एंड के लिए। तो एक्स एक्स के लिए एक्स एक्सिस के लिए हो गया और एस वाई हो गया वाई एक्सिस के लिए। नाउ अब हमने इसको लिख दिया पी डैश एक्स के लिए एस हो गया इंटू पी एक्स एंड पी डैश वाई के लिए स्केलिंग हो गया वाई एक्सिस एस वाई इंटू पी वाई। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया एंड दिस वन इज बिकम्स द डायगोनली एस एस एंड वाई and these becomes two fields are remaining as a 0, okay। This is the formula. Now the important point is about the scaling. So if the scale factor are in between 0 and 1, तो आप क्या लिखोगे? अगर देखो स्केल जो वेक्टर है वो 0 and 1 के बीच में अगर आपका रिजल्ट आएगा तो ये समझ लेना कि ओरिजिन के क्लोज जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है पी एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है 2 एंड वाई की वैल्यू क्या है 5, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? आप यहाँ पे मैट्रिक्स में रख दो, यहाँ पे 2 रख देना एस एक्स की जगह और यहाँ 5,
जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये वाला टर्म जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस बिकम्स द 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0.5 एस एक्स के लिए एंड वाई के लिए भी 0.5। तो जिसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट है आपने 2 और 5 लिया था एक्स और वाई की वैल्यू, आपको अगर 0 और 1 से बीच में वैल्यू मिल रही 0.5 क्या है 0 और 1 के बीच की वैल्यू है, तो आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मूव करना होगा अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अगर ये और भी छोटी होती जा रही छोटी तो ये और छोटी होती जाएगी। अगर आप लेके देखिएगा फिर मुझको कमेंट करके बताना। आप p ले लेना, कोई भी वैल्यू ले लेना, यहाँ पे 1 ले लेना एंड y की वैल्यू ले लेना 4, फिर ये और छोटी इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्रेसिंग हो जाएगी, यानी एक यूनिफॉर्मिटी में वैल्यू जो है स्केलिंग वेक्टर की वो डिक्रीज होती चली जाएगी, जिसकी वजह से इमेज जो है वो हमारी कंप्रेस फॉर्म में आती चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज योर अगर ये वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है, लार्जर होती जाएगी, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट विल बी लार्जर। वही वैल्यू ली है यहाँ पे लेकिन वैल्यू देखिए डिफरेंट आ गई है, एक से ज्यादा है, एस एक्स की वैल्यू है 2, एस एस वाई की है 2, तो ये वैल्यू लार्ज हो गई। नाउ द स्केलिंग इज द यूनिफॉर्म स्केलिंग। यूनिफॉर्म स्केलिंग क्यों, क्योंकि अगर आपके एस एक्स और एक्स वाई की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई तो यूनिफॉर्म स्केलिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें सिर्फ साइज में चेंजेस होते हैं, अगर ये नहीं है तो डिफरेंशियल स्केलिंग हो जाती है। ठीक, नाउ द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज द मिरर रिफ्लेक्शन, जब हम उसी इमेज का जो ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब दूसरी तरफ देखते हैं। अब ये ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ पे देखिए वैल्यू है 1 2 3, अब इसका मिरर रिफ्लेक्शन किया तो दिस बिकम्स 1 डैश एंड 2 बिकम्स द 2 डैश, 3 बिकम्स द 3 डैश। अब इसको लिखते कैसे हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे डायगनली सारी वैल्यू लिखी जाती है एंड फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है। फर्स्ट ओके -1 जो है वो निगेटिव होती है और डायगनली में सारे 1 1 होते हैं। Then shears. Shears is the same as the scaling. I told you earlier that, but हम वहाँ पे क्या करते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में स्केलिंग करते हैं, बट जब हम कहीं भी रीजन में उस वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो हम उसको शेयर बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही में साइज चेंज होता है। ठीक है, ये देखिए ये ओरिजिनल आप डेटा है आपके पास एंड अगर हम उसको y शेयर कर रहे हैं तो ये y के रिस्पेक्ट में देखिए इमेज थोड़ी सी बढ़ गई है अपने ओरिजिनल पोजीशन से y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर x के बिलोंग्स में हम इसको शेयर कर रहे हैं तो वो x एक्सिस में, इसको भी डायगोनल में लिखा जाता है 1 1 1 1 1 1। जहाँ अगर आप y शेयर के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो यहाँ पे y लिख देना 1 के नीचे पहली वाली रो के नीचे, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप जो है फर्स्ट रो में x लिख देना क्योंकि ये x एक्सिस को बिलोंग करती है, और यहाँ पे h लगा देना। s लगाएंगे हम स्केलिंग के लिए, sh लगाएंगे हम शेयरिंग के लिए। अब ये x डायरेक्शन का एग्जाम्पल जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे sh लिया है इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्यों, क्योंकि sh x है, x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपकी x की वैल्यू है जैसे 0 1 0 0 1 0 1 1, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x की जगह 2 आ जाएगी। नेक्स्ट वाले में देखिए 2 1 हो गई, देन 0 बिकम्स 0, देन 1 becomes 1 and 3 1। ये कैसे चेंज हुआ, तो ये हुआ है फॉर्मूले से जो अभी हमने लगाया था, इस वाले फॉर्मूले से। तो एस एच की वैल्यू यहाँ आप जब 2 रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये नई वैल्यू आ जाएगी। ओके, ना आप देखिए यहाँ पे भी देखिए वैल्यू आपकी आ गई है, इस तरीके से वाई शेयर हो रहा है। If you have any doubt, any query regarding the lesson, regarding the topic, regarding the voice, regarding the teacher, so you can freely ask to write in a comment box. I will definitely solve your problem. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले समय में मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करा सकूँ, ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड और जो कंप्यूटर ग्राफिक्स पे यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।